Once upon a time, in the Balkans, there used to be a European country called Yugoslavia, a multi ethnic socialist federation which collapsed at the end of the Cold War. Most ethnic groups formed their own states, and riding a wave of nationalistic frenzy, many of these states went to war for land, thus resulting in the Yugoslav wars, which are notorious for ethnic cleansing, armies forcibly removing entire population from regions either by driving them off or by mass murder. The Serbs operated concentration camps. These camps were discovered by mistake by a group of British war reporters who stumbled into one. I would like to play a short clip. In small groups, under heavy Serbian guard, they are ushered into the canteen for their single meal of the day. Most have been here for 2 months. They say they don't know why, but they were rounded up from their homes. They were too frightened to talk about the way they have been treated and the conditions in which they have been kept. Conditions which have been hidden from the world. The pictures of the emaciated men were initially denied and suppressed, but photographs and survivor testimonies that leaked out caused global outrage, prompting stronger international condemnation. This phenomenon is known as the Streisand effect, where attempts at suppression only serve to draw greater and often unwanted attention to the very subject one seeks to conceal. The British Empire too attempted to suppress literature and countless other sources that could spark dissent. Yet these efforts proved to be futile. The reaction they provoked ultimately shook the administration down to its very core. Good afternoon, everyone. I, Rishiraj Singh Devra, will be hosting today's event on the behalf of the Center for Shahid Bhagat Singh Studies and Research, Shahid Bhagat Singh College. We are truly delighted to welcome Mr. Rajmani Srivastav, retired Assistant Director of National Archives. We also extend a warm welcome to Dr. Prashant Sir, IQAC Coordinator, along with the distinguished faculty members and enthusiastic students who have joined us. We request all present to join the Kulgeet. जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम शेष सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विरंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम सकल वसुधा नित्य कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम देश की स्वाधीनता एक भूमिका शतकोटि वंदन निष्ठा कृति सत्यम के मंगल की भावों का समागम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे छात्र और छात्राएं दीक्षित सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम शेष सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विरंगम जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान आलोक अनुपम ज्ञान आलोक अनुपम. The Center for Shahid Bhagat Singh Studies and Research is honored to welcome Mr. Rajmani to speak on Pratibandhin Strot Evam Rashtriya Andolan and shed light on these elusive sources that smite the British Empire. Now I request our coordinator Meeta ma'am to welcome our guest. Good afternoon. Am I audible? Yeah? Okay. All right. It really gives me great pleasure
to introduce Mr. Rajmani. He has had a very long and distinguished career at the National Archives. He was sharing bits of it with all of you. In fact, the pleasure is even more because he's a very good friend and he has been like a guide to me in establishing this center. When I set out to do so, with the blessings of our earlier principal, Professor Khurana. So he was, he was one of the guides that I had who helped me to set up the center, telling me as to what all sources should I tap to have a sort of a complete, as far as possible, a complete, comprehensive, understanding of Shahid Bhagat Singh. He is a postgraduate in modern Indian history and diploma in archival sciences. He has been associated with the outreach program, as he just told you. His significant achievements are conceptualization and presentation of thematic archival exhibitions in India and abroad. He has been a content consultant for the Election Commission Museum. He was content curator for National Library's permanent display project and that of the ASI at Red Fort. He has been associated with the oral history program of the Delhi Archives. He holds the credit for supervising display of tangible and non-tangible culture of 29 countries entitled Culture Corridor during the 18th G20 Summit in 2023. Currently an independent scholar working as a resource person for Government of India and Delhi government. He's a resource person for development of learning centers in the field of archival sciences and modern Indian history. Amongst many editorial ventures, he has co-authored a bilingual publication, Introduction to Archives and Museum. There's a lot more to his credit, but I'll keep it short. But before I hand over the mic to him, I would also like to introduce to my new students, my first years, the Center for Shahid Bhagat Singh Studies and Research, in very short. It was established in the Golden Jubilee year celebrations, during the Golden Jubilee celebrations of the college. And it has been focusing upon bringing to students and to teachers, bringing to them the understanding about the activities, the thoughts, ideas of revolutionaries like Bhagat Singh, who had an exemplary presence in the 1920s and 30s, the tumultuous years of our independence struggle. And also to drive home the fact that different visions of independence informed the struggle. It was not only one kind of vision which drove so many of our freedom fighters. The difference, the diversity of their visions is what we are trying to give an understanding of through the Center for Shahid Bhagat Singh Studies. We do lectures, workshops, various kinds of activities, visit museums, visit the archives, which I think after I leave, my younger colleagues will definitely take up. So I think we will begin with the lecture right away. Over to you. तो साथियों, आज हम बात करते हैं प्रतिबंधित सोच एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये ऐसा विषय है जिसमें मतलब इतिहास के छात्रों को तो खैर रुचि होगी, लेकिन इतिहास से इधर के छात्र हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और हम आज़ादी की बात करते हैं और आज़ादी हमको कैसे मिली और कैसे कौन लोग हमारे साथ थे और क्या क्या माध्यम थे और क्या क्या जुल्म और सितम हुए, वो सब अगर समझना है तो हमें स्रोत देखने पड़ेंगे। जैसे जहाँ पूरा कहीं मिलता है हमको, लेकिन बात जो है ये प्रतिबंधित सूत्रों के बारे में मैंने जब इस विषय पे बात बोली थी कि क्या करा जाए, तो हमने कहा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि इसमें इतिहासकारों की तरफ भी मैं उम्मीद तो नहीं उठाता, लेकिन उनका ध्यान जरूर खींचता हूँ कि उन्होंने बहुत देर से इस तरफ ध्यान दिया। लोग कहते हैं कि राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास इसमें लगे रहे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास
जन साहित्य से तैयार हुआ, लोगों द्वारा लिखे गए साहित्य से तैयार हुआ, उस तरफ लोगों ने काम बहुत कम किया और उसको हमने एक क्रमबद्ध तरीके से रखने की कोशिश करी है। और आपको मैं रुचि को पैदा करना चाहता हूँ ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं, जो काम नहीं हुए हैं वो काम को पूरा करें। तो टाइटल के बाद आइए हम नेक्स्ट वही कर सकता है इसको। देखिए, इतिहास लेखन जैसे आपको सबको मालूम है कि इसमें मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, और जो असली बात समझने वाली बात है, एक प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स से जानते हैं, मैं बहुत पेडिस्ट्रियल बात नहीं करता, लेकिन बस वो है कि जो source that was created in a historical time sometimes use first person, तो sometimes use first person, जहाँ पे प्रोनाउन आई या मी करके होता है वही प्राइमरी सोर्स मान के चलिए, बाकी सब सेकेंडरी है। तो एक छोटी सी बात मैंने एक इशारे से कही, तो ये प्रतिबंधन है क्या? पहले हमने कहा ना प्रतिबंधित साहित्य की या स्वामित्व की बात हमने जो करी है, प्रतिबंधन है क्या? तो एक दो लाइनें अगर आपकी पढ़ने के मेरे साथ तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें जानना जरूरी है कि जो जिसे अंग्रेजी में बैंड कहते हैं, सेंसर कहते हैं, फॉर्मेटेड कहते हैं, प्रोस्क्राइब कहते हैं, प्रोहिबिटेड कहते हैं, वो चीजें जो रोक दी जाए, क्यों रोक दी जाए, इसको हम अभी बात करेंगे, आगे करेंगे कैसे रोकी गई, क्यों रोकी गई, वो सब तो होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो देखते हैं कि अर्लीस्ट पीरियड में, एंशिएंट टाइम में आपको ये प्रतिबंधन वगैरह की बात नहीं मिलती है, इवन मुगल पीरियड में भी आया तो उसमें नहीं मिलती है। मामला जब शासन सरकार के हाथ में आया, यानी एक सरकार बनी जिसे कि आप कांग्रेस की सरकार कहते थे, तो उन्होंने प्रॉपर सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि हम कुछ चीजों को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि ये जनता की आवाज है और शासन के खिलाफ। तो शासक और शोषित के बीच में जो झगड़े हैं वो प्रतिबंधन का मेन कारण बना, और उस प्रतिबंधन को रोकने के लिए उन्होंने बहुत एक प्रक्रिया अपनाई है। उस प्रक्रिया पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर हम मूल स्रोतों पे बात करेंगे। ये हमारा आज का विषय का है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में एक आपसे संवाद करेंगे, और उस समय इसलिए करेंगे कि आप में थोड़ा सी उत्तेजना आए और आप लोग उसको समझें और उसमें होने वाले काम क्या हो सकते हैं उस पर आप लोग काम करें। ये मेरे आज के लेक्चर का कुल मिलाकर है। अब देखिए, सबने पढ़ा होगा कि पहला जो है हमारा जो प्रिंटेड न्यूज़पेपर विकी गजेट, और हम लोग उसे जो हमारे बंगाल मिरर के नाम से जाना जाता था वो था, उसको ही 1857 निकला, जो था 1780-82 में निकलना शुरू किया था। लेकिन उस समय भी चूंकि उन्होंने गवर्नर एसपी की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर दिया, आलोचना की नीतियों को कर दिया, तो उसको ही बंद कर दिया। लेकिन 1870 में जब आए हो, 57 में सत्ता परिवर्तन हो गई, कंपनी से डाउन हो गया। मतलब मैं इसको जोड़ के देता हूँ, आप लोग को आसानी रहेगी कि 58 में क्वीन आती है, और 58 से और 70 तक का पीरियड कितना, 12 साल मुश्किल से। 12 साल के पीरियड के अंदर क्या होता है, वो बाकायदा पेनल कोड ले आते हैं और 124 ए में कहते हैं कि आपको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी भाग करेंगे तो आपको आपके ऊपर चार्जेस लगा के आपको बंद कर दिया जाएगा। शुरुआत प्रतिबंधन की अगर देखें तो अगर बंगाल गजेट को भी हमें करने मिला। अब देखिए, जो 1876 में जो सबसे पहला बड़ा अगर बात करी जाए विकी के बाद, तो हमारा जो ये इंडिगो प्लांटेशन का जो नील दर्पण निकलता था, नील दर्पण अखबार निकलता था, जो कि आपके सामने हमने उनकी फोटो भी लगा दी आपकी जानकारी के लिए कि भाई देखिए, इन्होंने दीनबंधु मित्रा थे, इन्होंने नील दर्पण लिखा था, तो वो उस नील दर्पण को उन्होंने बंद कर दिया। और 1876 में प्रेस और जो बुक एक्ट आया, उसमें कहकर उसको सभी प्रकाशकों को इस प्रकार के निकालने को सरकार को लाना होगा। और इस अधिनियम के तहत ही नील, तो मैंने बताया 1858-1859 में जो बनाया लिखा गया था, बाद में बैन हो जाता है। जो कि नील के आपने नील आज पढ़े होगा, इंडिगो का पूरा गांधी का चंपारण, उसमें हम नहीं जाए, लेकिन ये कि इसकी शुरुआत जो है आपको यहाँ से मिलती है। अगला अब देखिए, क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, उसमें क्या कह रहे हैं, यदि सरकार ठीक समझती है तो सरकार को समाचार पत्र और छापे खाने, मतलब अभी तक तो था आपने कहीं लिखा वो हो गया, उन्होंने कहा नहीं, अगर छापा खाना है तो छापा खाने को, यानी जो प्रेस है, साथ साथ और भी सामान है, इंक है,
समाज जो सामाजिक सब भाग ले जाएंगे। ये उन्होंने 1878 का बड़ा प्रोजेक्ट आता है जो कि लेटेस्ट जमाने में आ रहा है, वो आ जाता है। और उसके बाद चूंकि संसाधन एक जगह से दूसरी जगह पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे डेवलप हो चुका था तब तक, तो 1898 में जो उन्होंने जो पोस्टल डॉक्यूमेंट एक्ट आता है उसमें उन्होंने क्या करा कि उनको पावर है कि वो चेक कर देंगे, खोल के देख लेंगे इसमें क्या जा रहा है। तो यानी उनको था कि जा क्या रहा है, मतलब कहते हैं कि उनकी नजर हर उस सामग्री पे थी जो कि उन्हें लगता था कि उनकी आलोचना करेगी, इसलिए उन्होंने फौरन उसको रोकने के लिए उन्होंने काम किया। अगली प्रक्रिया अगर देखें तो 1905 में आप देखें तो चूंकि बंगाल पार्टीशन बंगाल हो गया, अब से क्या हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप सबने पढ़ाई होगा इतिहास में, उसको मैं दोहराता नहीं बस इशारा करता हूँ कि 1905 के अंदर जब बंगाल विभाजन हो गया, पार्टीशन बंगाल के बाद क्या हुआ कि नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में होने लगी, तो बहुत सारी चीजें आने लगी। तो हमारे कर्नल साहब ने भी कुछ इस पे अपना योगदान दिया और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम की उदारवादी रचनाओं के साथ साथ क्रांतिकारियों ने भी अपनी जो जयघोष का हमने बताया आपको। तो 10 में जो प्रेस एक्ट आता है उसमें क्या कहते हैं कि बुक क्या होगी, डॉक्यूमेंट क्या होगा, हाई कोर्ट क्या होगी, मजिस्ट्रेट क्या होगा, समाचार पत्र क्या होगा, छापा खाना क्या होगा, इन सबके उन्होंने बाकायदा डेफिनेशन बनाई। मतलब अभी ऐसे कहना तो गड़बड़, उन्होंने डिफाइन कर देते हैं कि ये है तो ये प्रेस है और उसी हिसाब से एक्शन ले लेते हैं। और साथ साथ ही कहा गया कि 500 रुपए तक का जमानत राशि उनको जमा करनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट को पावर दे दी गई कि मजिस्ट्रेट उसको देखाएगा, क्योंकि हर क्षेत्र में मजिस्ट्रेट काम का अपना। तो इस तरीके से उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन की प्रोसेस है उसको उन्होंने एक बनाने का तरीका बनाया और इस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। अब हम आगे आते हैं कि 1913 में देखिए हिंदुस्तान के बाहर भी मूवमेंट चल रहा है। अब वो गदर पार्टी का उधर 1913 में फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जब 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है तो गदर पे यहाँ पर अगर आप 2-3 चीजें देखें तो यहाँ तो मैंने 2 स्लाइड दिखाई है, वो वीडियो दिखाया है, एक पंजाबी में और एक उर्दू में। लेकिन गदर जो था, हमने जब रिसर्च करी तो हमने देखा कि गदर जो गुजराती में था, गदर जो था वो हिंदी में भी आया, हिंदुस्तानी गदर के नाम से आया, इसके नाम बदलते रहे। लेकिन क्योंकि कनाडा से छप रहा था और इस तरीके से ये हुआ। उसके बाद 1913 के बाद जो हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो बहुत सारी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमारे हिंदुस्तान में बहुत बन रखी है, तो उन सबको स्टडी करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक सर्विसेज कमेटी का गठन कर दिया। और सर्विसेज कमेटी के जो चेयरमैन थे रॉबर्ट साहब हुआ करते थे, जिन्होंने फिर रॉबर्ट एक्ट बनाया और वो 1919 का जलियांवाला बाग जो होता है वो रॉबर्ट एक्ट के बाद ही होता है। तो सर्विसेज एक्ट के जो चेयरमैन थे उनका काम ये था कि उन्होंने जितनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हिंदुस्तान में लाहौर से लेकर कलकत्ता तक, अगर हम उस समय का भारत को देखें तो वो हमने दिखाई दी थी और उन्होंने उसको बनाया। आइए अब कोई नहीं आएगा, इसे आना था आ गया है ना, अब नहीं आएगा। देखिए मैं पुराने स्कूल काट रहा हूँ, जब चाहो तक चुके वैसा नहीं होता। आए हैं जो बैठे हैं वो कुछ ले जाए, अच्छी बात है। अब नहीं कोई आए, अब कोई अंदर नहीं। ठीक है, बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरा तो फिर हो जाऊंगा, मैं करूँगा, आप लोगों का समय कम है तो मैं कम समय में अपनी बात नहीं करूँगा। तो अब देखिए जो बात हो रही है कि जब गांधी जी का पीरियड आता है, अब 1919 में गांधी जी के हिंदुस्तान आ जाते हैं। गांधी जी के हिंदुस्तान आने के जो 2-3 बड़े-बड़े चीजें हैं वो मैंने लिखने की कोशिश करी है, अगर आप नहीं पढ़ रहे इसको तो ये आपके साथ मैं पढ़ूं कि महात्मा गांधी की सभ्यता हुआ कि भारत के सभी वर्ग जाति समुदाय के साथ साथ महिलाएं भी आती कि उससे पहले महिलाओं की भागीदारी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं जरूर नहीं मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई मिल रही है और भी हमें चिन्नमा मिल रही है, बहुत सारी मिल रही, लेकिन जिसे कहते हैं कि जन साधारण की महिलाएं जो निकलती है सरोज नायडू के पीछे जो आते हैं वो उसमें शुरू होता है। और इसीलिए गांधी जी को ने जो व्यापकता दी तो उससे क्या हुआ कि जो नव जागरण की जो अवेकनिंग या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति चेतना जो थी वो कम से कम हिंदी बेल्ट पे तो शुरू हुई। और हिंदी बेल्ट में शुरू हुई तो जो लोकल जैसे थे पंजाब में या बंगाल में या आप इवन साउथ के भी क्षेत्रों में, उसके बारे में बताऊंगा आपको आगे कि दक्षिण भारत में भी छोटी मैगजीन निकलनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग गांधी से अपने को कनेक्ट करने लगे। और इसलिए मैं आपको ये जो बीच में दिखा रहा हूँ ये वो प्रोस्क्राइब पब्लिकेशन जो हमारे पास है और क्या है कैसे है वो भी आपको दिखाता हूँ। उसकी मैं कुछ क्या दिखा रहा हूँ। अब देखिए गांधी की आंधी, राष्ट्रीय कविताओं का अपूर्व संग्रह, आजादी की लड़ाई। अब ये कितने 2 30 5 16
दो व्यापारियों से 2 सैकड़ा प्रथम बार होती है मार्च 1930 में। मूल इसका आधा आना है ना, तो ये छपती रही है, बिकती रही है, पहुंच भी रही है और पॉकेट में रखने वाली है। ईद के साइड बड़े छोटे मिलते हैं और उसका कारण है कि ट्रेन में रखी पब्लिक के अंदर, लोग पब्लिक करते उसमें दवाली कैसे करें। तो ये प्रतिबंधित साइज का ये मजा है, ये आपको सरकारी फाइलों में ये चीजें नहीं मिलती। तो आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए जब गांधी जी की हम जब बात करें तो हम थोड़ा सा तरह की बात जरूर करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगाया है, महात्मा गांधी दांडी प्राणायाम, और एक श्लोक लिखा है संस्कृत के अंदर। संस्कृत वाले होते हैं ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि सत्याग्रह जो है वो ऐसा शस्त्र है जो कि वीरों का शस्त्र है। ये उन्होंने प्रतिबंधित साहित्य से मैंने लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि प्रतिबंधित साहित्य में किस तरीके की सामग्री छप रही है, उस समय की प्रिंटिंग आपको दिखाई दे रही है, उस समय का कंटेंट दिख रहा है, उस समय की राइटिंग स्टाइल दिखेगा और उस समय के समाज के लोगों का क्या सोचना वो निकल रहा है। तो 1930 में जो तो बताया मैंने, पहला जो अध्यादेश 2 प्रेस एक्ट आते हैं, तो दोनों का बेसिक पर्पज ये था कि समाचार पत्र और पत्रिकों को नियंत्रित किया जाए। कैसे किया जाए उसके लिए उन्होंने ये 1930 के अंदर एक्ट निकालते आफ्टर दांडी मार्च। तो ये अंग्रेजों की मैंने प्रतिबंधन की आपको प्रक्रिया दिखाई, जो कि अगस्त हिक्की गजट से शुरू होती है, बंगाल गजट से शुरू होती है, जिसे कैलकाटा गजट भी कहते हैं, और वो आगे 1930 तक काफी सख्त हो जाती है और उसके बाद वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। अब ये प्रतिबंधित सामग्री है कहाँ पर? सवाल ये है कि सामग्री तो मैंने दिखाई आपको, कुछ है कहाँ पर और किस शक्ल में है और इसमें क्या क्या है, किन किन विषयों में है, किन किन भाषाओं में है, इस पर हम बात करते हैं। तो ये अगर हम देखें तो हिंदी की जो साहित्य है, बेसिकली तो हमें राष्ट्रीय प्रेक्षागार में जो करते हैं उसमें लाइब्रेरी है, वहाँ पर उपलब्ध है। साथ में क्या होता है कि बहुत सारी जब हम होम डिपार्टमेंट के पॉलिटिकल ब्रांच, ये 1907 में होम डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल ब्रांच होती है, जिसमें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हिंदुस्तान में हो रही है उससे रिलेटेड, उसमें सरकार की नोटिस हो एक्शन है, उनकी फाइलों के अंदर भी ये मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लाइब्रेरी में गए और एक कलेक्शन देखा कि ये प्रोसेस लिटरेचर है उसको हम छोड़ते, ऐसा नहीं है। आपको होम पॉलिटिकल की फाइल देखिए, उनमें भी आपको मिलेगी। तीसरा एक इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर, वो बहुत सारी ले गए, जब्त करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें वहां दी, वो उनके बाद आपको इसी को लंदन जाना और बहुत सारे हमारे साथी हुए लंदन से सामग्री लेकर भी आए हैं और अपने रिसर्च में लोगों ने इस्तेमाल भी किया है। उसके अलावा तीसरी जो लास्ट बात मैं कहना चाह रहा था कि अभी बहुत दिन तक मैं भी इसी भ्रम में था कि ये 2 चीजों के अलावा कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा गंभीरता से काम किया तो पता चला कि हमारे जैसे राष्ट्रीय प्रेक्षागार दिल्ली में हो गया और नेशनल आर्काइव्स हो गया, उसकी तरह हर स्टेट में आ गई है। तो जो हमारे प्रोमिनेंट स्टेट आर्काइव हैं उनके अंदर भी कुछ फाइलें मिली हैं और मिल रही हैं और उनको अभी कायदे से देखा भी नहीं गया है। तो उसके मैं कुछ उदाहरण भी आपको दिखाऊंगा। तो वो स्टेट आर्काइव को भी आपको कंसल्ट करना चाहिए अगर आप प्रोस्क्राइब लिटरेचर पे काम कर रहे हैं, प्रतिबंधित साहित्य पे काम कर रहे हैं, बैड लिटरेचर पे काम कर रहे हैं। तो अब है क्या सामग्री, अगर इसको समझ लें तो बहुत छोटी 2-3 लाइनों में अगर कहीं मैं पढ़ दूं कि जिस सामग्री को जब्त किया गया है वही कालांतर में या बाद में प्रतिबंधित साहित्य होगी। ये सामग्री का अगर वो देखें कि भारतीय चेतना का वो अजय पहलू है जिससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने उसे दबाने का प्रयास किया। और तीसरी बात, ये एक तरह से ब्रिटिश सरकार के डर का आईना है, वो डरते थे, ये निकला है जिसको बंद कर दो, तो डर का आईना भी उसको कह सकते हैं। और कुछ विद्वानों ने इस सामग्री को प्रतिशोध का साहित्य, रिवेंज लिटरेचर के नाम से भी डिफाइन किया है। ये इसकी मोटी जिसे कहते हैं, अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो ये चीजें निकल कर आती हैं। अब आइए हम इस पे जिन्होंने इस्तेमाल पढ़ना शुरू किया प्रतिबंधित साहित्य था, तो हमारे पास हमने बताया कि 1870 में एक आ गया, फलाना आ गया, लेकिन ये सामग्री भी आ गई हमारे पास। इस सामग्री का यूज नहीं होता, यूज करने का अगर सारा क्रेडिट जाता है तो एंटी बैरियर साहब को जाता है। 1996 में उन्होंने बैंड कंट्रोवर्शियल लिटरेचर एंड पॉलिटिकल कंट्रोल इन ब्रिटिश इंडिया, ये पहला काम करते हैं। यानी देखिए 1926 हिंदुस्तान आजाद हो गया, 1947 से 1976 तक इस पर कोई काम नहीं कर रहा। ये हमारे बैरियर साहब आए और इन्होंने काम किया। इन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने 19वीं सेंचुरी में जो नॉर्थ इंडिया और पंजाब में जो लिटरेचर था नेशनलिस्ट
उसको इकट्ठा किया और उसमें उन्होंने करीबन 1200 टाइटल थे, 1200 टाइटल्स को उन्होंने उसमें इंक्लूड किया और उनके बारे में अपना एनालिसिस करके किताब करी। तो ये पहला काम होता है। लेकिन ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ा, आगे बढ़ने का तरीका में हम अपने जो हमारे डिपार्टमेंट के ये मटेरियल तो था, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं था। जब तक कैटलॉगिंग नहीं होगी तो बेकार है। तो कैटलॉगिंग का काम, दो तरीके का लिटरेचर हमने जब छाटा उसको, तो दो तरीके का लिटरेचर था, एक प्रोज फॉर्म में था, एक पोएट्री फॉर्म में था। पोएट्री फॉर्म के लिए पहला 1982 में हमारे त्रिवेदी साहब हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा कि भाई सारा पैट्रियोटिक सॉन्ग जितने हैं इनको एक कैटलॉग इनका तैयार करो। और उसी तरीके से 1984 में डॉक्टर पत्ती थे, उन्होंने प्रोस्पेक्ट का जो प्रोज था, पोएट्री के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें भजन है, लोकगीत है, गजल है, कव्वाली है, संगीत में नौटंकी है, इन सब स्टाइल्स में गाँव में काम हुआ। और उसी तरीके से जब हमने इसमें बात करी तो इसमें नॉवल है, कहानियां हैं, जीवनियां हैं, ये प्रोज के अंदर है। अब अगर हम लिटरेचर पोइट्री को देखें तो पोइट्री किस किस लैंग्वेज में हमारे पास है, तो हमारे पास 11 लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में कितने पब्लिकेशन है ये चार्ट आपके सामने है। इसमें देखिए बंगाली भी है, गुजराती भी है, देखिए पूरा हिंदुस्तान दिख रहा है इसके अंदर आपको। इसमें बंगाली भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, कन्नड़ भी है, मराठी भी है, उड़िया भी है, पंजाबी, हिंदी, तमिल, तेलुगु है, उर्दू। ये इतने उर्दू जो कि उस समय ज्यादातर पढ़े लोगों की भाषा थी और आज भी लोग पढ़ रहे हैं उर्दू को, पढ़ना भी चाहिए क्योंकि बहुत उर्दू और हिंदी में कोई फर्क तो है नहीं, सिर्फ लिपि का फर्क है। तो इस तरीके से ये हमारे को जो लैंग्वेजेस हैं वो हमने आपको दिखाई। अब प्रोज में देखिए ये मैंने 3 हाईलाइट कर दी क्योंकि यहाँ 14 हो गया, वहाँ 11 थी, यहाँ 14 हो गई। तो 3 कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो कि पोइट्री में नहीं है लेकिन उसमें है, तो इंग्लिश है, मलयालम है और असमी है। तो ये सबका कंटेंट के कितने नंबर पब्लिकेशन है ये आपको हमने यहाँ पर एक चार्ट दिखा दिया। कोई आगे जाएगा तो अभी मैं और आगे बताता हूँ। एक मैंने आपकी सुविधा के लिए कि क्या क्या चीजें है, किस फॉर्म में है। अब हम प्रतिबंधित सामग्री में हमें एक चीज और अच्छी मिलती है, रोज पोइट्री के अलावा पोस्टर्स मिलते हैं। जैसे आज की तारीख में आप हीरोज को पोस्टर, शाहरुख खान का या आपका आज का तारीख का कौन हीरो है लेटेस्ट, आप बताओ। हम तो नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि देखिए भगत सिंह 2 माई के लाल के जिले में भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमें पोस्टर्स मिले हैं, पोस्टर्स की टाइटल है जलियांवाला बाग, स्वतंत्रता की बेटी, वीर शिवराम राजगुरु, भगत सिंह का राइटिंग पैड, जो एक राइटिंग पैड है उस पर भगत सिंह की पिक्चर बनी, को उसको बैन कर दिया गया। मतलब बैन करने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हिंदुस्तानियों ने बचाने की कोशिश करी और ना बचाया होता। जैसे मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था, अगर आपने बचाएंगे नहीं तो किसी को कोई पढ़ेगा कैसे। तो एक पैड पे सिर्फ भगत सिंह का स्केच बना हुआ है, वो है, उसको ना बैन कर दिया। लाहौर सदन केस है, देश दशावली चित्रावली है, और तो 1946 में एक कैलेंडर बना, क्योंकि 1946 सुभाष चंद्र बोस के लिए आप ये देखिए हिस्ट्री से जो भी है 1946 का जो ईयर है वो सुभाष समय प्रोमिनेंट है। तो उस समय जो 1946 में कैलेंडर बना है जो जिसमें डेट्स हैं, वो एक शीट है, वो नेताजी को समर्पित है, तो उसको भी उन्होंने बंद कर दिया उन्होंने। अब ये देखिए जो ये थी सामग्री, इसको हमने क्या प्रयास करे, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जो प्रोज थी उसमें हमने कुछ टाइटल्स निकाले, पोइट्री में कुछ टाइटल निकाले। जैसे मैंने आपसे 1994 में जब जलियांवाला बाग की 50 साल हुई तो हमने कुछ गीतों का संग्रह निकाला, इसमें कि जलियांवाला बाग से संबंधित कविताएं थी, तो उसको हमने लहू लुहान बैसाखी नाम दिया। देशभक्त के गीत 1985 में निकाला, आजादी के तराने उर्दू में निकाला, फिर उसका हिंदी रूपांतरण में निकाला, धरती की पुकार 1991 में निकाला, जंजीरें के नाम से उर्दू में निकाला और स्वतंत्र स्वरम तेलुगु में निकाला। किन वर्षों में निकाला, और ये पोइट्री से रिलेटेड चीजें थी। पोइट्री जो है उस समय प्रोस्पेक्ट लिटरेचर में उसको लोगों तक पहुंचाने का हमने काम किया। फिर हमने प्रोज में क्या काम किया, अशोक निकाला, लहू बैसाखी उर्दू में निकली, आजादी की खोज निकली पंजाबी में, प्रतिबंधित साहित्य ये भी पोइट्री चल रही है। स्वतंत्रता के स्वर प्रतिबंधित साहित्य हमने एक प्रॉफिटेबल टाइप की बुक 2023 में निकाली है। आगे चलो नेक्स्ट। अब ये चीजें जो चल रही थी, इसके अलावा नेशनल बेस ऑफ इंजीनियरिंग जो मैं आपको बताता हूँ इनके ऑफिस लाइब्रेरी में है, तो वहां से हमने 75 माइक्रोफोन ड्रॉप्स बनाए, जो सिलेक्शन है कंप्लीट टीम, तो वो भी हमने हमारे पास रखा माइक्रोफोन में है। क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन का दौर है, तो जब 75 साल अमृत महोत्सव हो रहे थे तो एक स्वतंत्र सुर के नाम से बाद में अच्छा काम हुआ। और आपके लिए सुविधा है, अगर ये लिंक है अमृत महोत्सव
डॉट इन स्वतंत्र स्वर। इसमें जो मैंने आपको चीजें दिखाई ये ओरिजिनल चीजें वहाँ नेट पर उपलब्ध है। तो आप जाइए साइट पर जाइए, अमृत महोत्सव वाली साइट पे जाइए, वहां पर जाएंगे तो आपको कैटलॉग भी मिलेगा और वो ओरिजिनल मटेरियल भी मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ एक सेंसिटाइज किया, बताया कि ये चीजें हैं, आपको होगा। तो ये अमृत महोत्सव की साइट आप देखें तो आपको मिल जाएगी। ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के बारे में अगर कभी किसी को कैटलॉग देखना हो तो ये वहाँ की जानकारी है। ये इसलिए टोटल बुक हमने रखा है नेक्स्ट ब्रिटिश लाइब्रेरी 85। अब देखिए मैं आपसे कह रहा था स्टेट आर्काइव्स में भी काम हो रहा है। तो मैंने दिखाया, देखिए 1987 में यूपी आर्काइव्स ने एक प्रोस्पेक्ट लिटरेचर पर एक वॉल्यूम छापा, लेकिन 87 में छपा, उसके बाद सेकंड वॉल्यूम नहीं आया। मैं बहुत कोशिश की पता करने की, क्योंकि उस समय जोश था लोगों में, निशाने का काम हो रहा था, वहाँ काम हो रहा था, तो वो नहीं निकाला। वहाँ पर अभी होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि वहाँ ना हो। जब मैं ज्योतिषी नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे पहले लोग काम कर रहे हैं उन्होंने पार्ट 1 लिखा है, तो पार्ट 2 की संभावना रखी हुई है। पार्ट 2 के लिए काम करने वाले लोग चाहिए। तो मैं उसको आधार बना के आपकी बात कह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट लिटरेचर का उन्होंने वॉल्यूम 1 निकाला, तो वॉल्यूम 2 की संभावना है, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। 87 से आज 2025 में। तो इन विषयों में काम होना चाहिए। इतिहास वाले आए, राजनीति वाले इतिहास वाले आए, पत्रकारिता वाले लोग आए, ये लोग ही काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा है, कोई भी कर सकता है, कोई किसी का ऐसा हो नहीं। इसी तरह से राजस्थान के अंदर इन्होंने जो जनता होते थे उन्होंने स्वाधीनता के गीत करके निकाला। तो इसमें मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि 1923 से 40 तक की 90 रचनाएं हमने की हुई हैं। इसमें उत्तराखंड जो छोटा सा स्टेट आर्काइव है उसमें भी देखिए ये हमको मिला है, और उसमें मैं खासतौर से पढ़ना चाहूंगा कि ये क्योंकि समय तो यूपी का पार्ट था, लेकिन कुमाऊं का किल्लोल मिलता है और झोड़ा कुमाऊं का प्रचलित लोकगीत है। अब देखिए इसमें फोक वाले को काम कर रहे हैं कि झोड़ा जो है कुमाऊं का प्रचलित लोकगीत है, जिसमें प्रत्येक जाति के पुरुष और स्त्री सम्मिलित होते हैं। इस नृत्य को गोलाकार में 2 दल बनाकर प्रस्तुत करते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, धार्मिक, भाव प्रधान और सामूहिक। इस झोड़ा गीत में गांधी जी व उनके बहिष्कार आंदोलन के साथ घर पर जलसा चलाने का उल्लेख किया गया। अब देखिए झोड़ा वहाँ का फोक है, लोकल है और वहाँ का है, लेकिन उसमें भी गांधी जी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल आर्काइव्स के अंदर देखा कि आईबी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाओं से रिलेटेड उनके पास जानकारी इसमें मिली, और उन्होंने एक वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई थी, शायद बुक भी कराई है उन्होंने, अभी बात हो रही थी इससे। तो वुमेन रिवोल्यूशनरीज का बारे में उन्होंने, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो कि हमको आईबी की फाइल में मिल रही थी, उसके अलावा ग्लास नेगेटिव्स मिले हैं उनको, तो ग्लास नेगेटिव्स को भी उन्होंने काफी सर्वे किया है। और इसमें 2030 में चक्षुरा साहित्य भारतीय स्वाधीनता घटना पे बंगाल की क्रांतिकारी बनाओ प्रदर्शनी मैंने बताया 2013 में लगाई थी उन्होंने, और इसकी चीजें हैं। तो ये नहीं वेस्ट बंगाल, अब आपको यूपी दिखाया, बिहार दिखाया, राजस्थान दिखाया और यूपी पहुंच गए, हम बंगाल पहुंच गए, बीच में बिहार रह गया था। अब बिहार वालों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ करूंगा। ये प्रोस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने 3 वॉल्यूम में निकाला, 1913 से लेकर 1947 तक। जो उनके पास जितनी फाइलें थी उन फाइलों को उन्होंने इन एक्सटेंस से छाप लिया 3 वॉल्यूम बना के। तो इसमें फायदा क्या हुआ कि बिहार के साथ साथ बंगाल और उड़ीसा, चूंकि 1913 से अगर 47 की बात करेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिलकर चल रहा है इसमें, तो उनके छोटे-छोटे साइक्लो स्टाइल निकलते हैं, उसको भी उन्होंने छाप दिया उसके अंदर। फाइल के एक्शन तो छापे जो लिटरेचर मिला वो भी डाल दिया। तो ये 3 वॉल्यूम अगर आप जी खासतौर से अपनी लाइब्रेरी के मंगा दें, ये प्रोस्पेक्ट कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव 1930 से 1947 3 वॉल्यूम्स में है। तो दैट विल बी वेरी गुड सोर्स मटेरियल फॉर योर रिसर्च सेंटर। इसको आप अपने आप मंगाइए तो अच्छा रहेगा, और अच्छे 3 वॉल्यूम्स एंड दैट्स ए गुड थिंग। आगे चलिए, अब आइए हम दिल्ली आर्काइव्स की बात करते हैं। दिल्ली आर्काइव्स हमारे बिल्कुल नजदीक में है। इसमें वैसे तो डिप्टी कमिश्नर का रिकॉर्ड है और उसमें है, इसमें देखिए शाबाश, और ये तो ट्रांसलेशन ऑफ शाबाश पैम्फलेट है। ये पैम्फलेट निकल रहा है जब हमारे हार्डिंग बॉम्ब केस के बाद, हार्डिंग बॉम्ब केस से इसकी कनेक्टिविटी है, हार्डिंग बॉम्ब केस से रिलेटेड फाइल की इससे तो इसके अलावा उनके पास भगत सिंह आपको दिखाया हुआ है। अगर आप कभी दिल्ली आकर जाएं तो भगत सिंह कॉलेज में खड़े तो होता है कि भगत सिंह की जो जेल में एंट्री है
वो उनके पास रिकॉर्ड है। उसमें भगत सिंह की क्या हाइट है, क्या उनके सिग्नेचर भी उसमें है। जैसे गेट पेंट्री रजिस्टर होता है, तो दैट गेट रजिस्टर इज इंडिया पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आप लोग भगत सिंह से तो कनेक्ट नहीं, और भगत सिंह से हर युवा कनेक्टेड है, आज है, कल भी रहे, पहले भी रहे। मैंने दिल्ली आजादी की वेबसाइट की नीति चली। अब प्रतिबंधित सामग्री जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिंदी में बात कर रहे हैं। मैंने भाषाएं बहुत सारी अब तो रहेंगी, अगर सारी बताने लगूंगा तो फिर लोग बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा कि सिर्फ आज हिंदी पे बात कर लेते हैं, और उसके बाद आप देखिए और भाषाओं में क्या काम करता है उसका मैं आपको इशारा करूंगा। तो ये देश की जनचेतना को सशक्त करने वाली वाणी से निकल के आई, विचार निकल के आए, नव जागरण की चेतना भी थी, और हिंदी की पत्रिकाओं में सबसे अधिक प्रतिबंधन का सामना करना पड़ा। ये फैक्ट है कि हिंदी को जितना परसेप्शन हुआ क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा थी आवाज में आई। देखिए अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी में हुआ करते थे, जो कि ये तो हिंदी के अध्यापक, लेकिन उन्होंने इस पे काम कराया, और उन्होंने जो उनका कोट में ध्यान दे रहा हूँ कि हिंदी में प्रतिबंधित साहित्य के ऐतिहासिक महत्व विचार की प्रवृत्ति बहुत दुर्बल है। जिन लेखकों ने पाबंदी, मुकदमा, जेल का खतरा उठाकर साहस के साथ ऐसी रचनाएं लिखी जो प्रतिबंधित थी, उनके महत्व की पहचान कर आलोचना करना एक राष्ट्रीय दायित्व। ये महेंद्र पांडे कह रहे हैं जो खुद विज्ञानी थे और उन्होंने काम किया। अब मैं इसमें दिखाना जा रहा हूँ आपको कि हिंदी जो साहित्य है इसमें आपको क्या क्या चीजें कैसी कैसी मिलती है। पहले एक चीज अच्छा हाँ ठीक। देखिए अगर आप इंडिया का कंसेप्ट देखिए, ये उस समय की मैगजीन्स निकल रही है, चांद निकल रहा है, माधुरी निकल रही है। अब भारत चूंकि अखंड भारत है इसमें, तो इस तरीके के चित्र आपको भारत के देखने को मिल रहे हैं पत्रिकाओं के माध्यम से जो प्रतिबंधित है। तो हमको आइडिया मिल रहा है कि अखंड भारत की जो लोग बात करते हैं, या अखंड भारत है तो क्या है, कैसे था उस समय भारत की जो विभाजन से पहले भारत की क्या स्थिति थी, वो हम यहाँ पर देखने को मिल रही है आगे। उसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग चीज है कि रानी लक्ष्मीबाई हमारे बचपन से हमारी मांग रहती है, तो उसके चित्र हमको इसमें इन पत्रिकाओं में मिलना है। जाहिर सी बात है 1930 और उसके आसपास के हैं, लेकिन 1857 से 1930 तक वक्त बहुत लंबा नहीं होता। अब 2025 में और आज की राशि लोग है तो चित्रकार की परिकल्पना ही, लेकिन जो चीजें उन्होंने सोची वो बनेंगी। अब देखिए प्रतिबंधित पत्रिकाओं और जो समाचार पत्र थे उन्होंने विशेषांक भी निकाले। ऐसा नहीं था कि वो तो कौन कौन से विशेषांक निकले, किसान ने फांसी निकाला, अभ्युदय ने भगत सिंह निकाला, अभ्युदय ने किसान अंक भी निकाला, और हिंदू पंच का बलिदान अंक भी है, वो मैंने कुछ आपको यहाँ पे दिखाया। अब आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा है, बोलना मुझे कम है। देखिए बलिदान का नंबर देखिए, चांद का फांसी अंक देखिए, चांद की फांसी में कैसे रचनाएं छप रही हैं, क्या आ रहा है वो देखिए। अब ये देखिए अगर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीकों पर हिंदी का चेतना, मैं इस पे ही एक छोटा सा आपको प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि इमोशन बहुत बड़ी चीज है, और इमोशन हिंदी में हो रहा है। तो जन्मभूमि से लेकर हम शुरू करते हैं यात्रा, और हम जय हिंद तक चलेंगे। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम आपने लता का ही सुना होगा। देखिए यहाँ पर 2 वर्जन मैंने गा रखे हैं, इतने और है, वो आपको काम करना है। छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहे, उस समय भी कह रहे बेजार वंदे मातरम। और उधर देखिए उसमें कहते हैं हे वतन है वतन के वास्ते अक्सी वंदे मातरम, देश की खातिर है जागीर वंदे मातरम, जालिमों को है अगर बंदूक पर अपना गुरूर, है इधर हम बेकसों को तीर वंदे मातरम। तो वंदे मातरम पर बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी आपको, लेकिन मैंने 2 आपको प्रतीकात्मक रूप से दिखाई। अभी देखिए वंदे मातरम का एक और दिखा देता हूँ। नहीं रखनी सरदार जालिम नहीं रखनी, आए थे व्यापार करने को बन गए दावेदार, जालिम नहीं रखनी सरकार नहीं रखनी। अब ये गाई भी जा सकती है। राष्ट्रीय आंदोलन में वो 4 गीत गाए जाए, ऐसी रचनाएं क्यों नहीं पढ़ी जाए जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व हो, तो इन रचनाओं का इस्तेमाल किया जाए, लोगों तक पहुंचे। तो यही हमारा आज के है। बुंदेलखंड से केसरी निकल रहा, देखिए उसमें भी वंदे मातरम कितना प्रोमिनेंट लिखा है। उस समय हाथ से बनाकर लोग कर रहे हैं, ये उस समय के जो लोग थे उनका समर्पण भाव दिखाता है कि वो है आगे। वंदे मातरम के अलावा हम आएंगे देशभक्ति गाते हैं। अब देखिए
कव्वाली फॉर्म में आ रहा है देशभक्ति। हिंदू मुस्लिम हो चाहे दो पर वतन एक ही है, दोनों के वास्ते दायर की गंदगी एक है, एक ही माँ के हैं आगोश में बैठे दोनों, सर पे दोनों बेटियां चरखे कोहन एक ही है, एक ही खाक से पैदा हुए हिंदू मुस्लिम, एक है सबको खुशी रंजो महन एक ही। तो अब ये कव्वाली फॉर्म में भी आ रहा है, और देखिए देश की हिंदू मुस्लिम एक एकता की बात हो रही है ना, अभी यही देशभक्ति की बात हो रही है। अब आजादी की डेली, क्योंकि हमने शुरू में जब हमारे नंदलाल बोस ने आजादी की पेंटिंग करनी शुरू करनी और बनाया, तो बहुत सारी लगी तो तुझको मेरा प्रणाम प्यारी स्वतंत्रता, तेरे लिए प्राण प्यारी स्वतंत्रता, नाम क्या शरीर अगर काम आए तो तेरे लिए बलिदान है प्यारी स्वतंत्रता। इसी तरीके से उन्हें बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं जो कि आजादी को देवी या उस स्वतंत्रता का काम करते हैं। अब देखिए झंडा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में झंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए झंडे पे गायन हो रहा है, राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्र पिता का नमो नमो, भारत जननी के गौरव के अभिजन का नमो नमो, कर में लेकर इसे सूरमा की कोट की भारत संतान, हंसते हंसते मातृभूमि के चरणों पर होंगे बलिदान। इसी तरीके से राष्ट्र धन मेरा जीवन बलिदान करेंगे, झंडा है प्राण हमारा, प्राणों से बढ़कर है प्यारा। ये इस तरीके से देखिए झंडे पर भी राष्ट्र पताका झंडे, इस पर भी रचनाएं मिल रही है, और ये मैंने सिर्फ सिंबॉलिक दिखा रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो पेपर बनेंगे इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। इसी तरीके 30 त्योहार, अब 30 त्योहार को देखिए, 30 त्योहार में बन रहे हैं, स्वदेशी होली जलाई जा रही है तो उस पर होली लिखी जा रही है, इसी तरीके शहीदों की होली। तो ये जो समाज से जोड़कर साहित्य लिखा जा रहा है। और जाना है जल्दी, बहुत जल्दी, जिसको जाना है निकल जाए, हाँ, क्योंकि किसी को वो कंपल्सन नहीं है, जिसको सुनना है सुने, है ना, शायद मेरी जिसको जाना है एक बार क्लास नहीं है, अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं मैं मजबूरी समझता हूँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, हाँ नेक्स्ट, हाँ टाइम भी ज़्यादा हो गया। अब देखिए रक्षाबंधन जो है, इसमें मैं आपको से लिखा हुआ पढ़ के सुना देता हूँ। पाँच जिले की कुमकुम रोली भरकर राष्ट्र भाव की झोली, आती माती जाई भोली राखी ले बहनों की धोली, रक्षा के वे बंधन लाती राखी प्राण अमर कर जाती, स्वतंत्र युग के पाठ पढ़ाती, विरोचित विद्वान है मेरे प्यारा भैया आओ स्वतंत्रता के गायन गाओ, और जाकर अपना शीर्ष सुनाओ। उसमें आता है द्वारा क्लियर नहीं आ रहा, तो उसमें कहने का मतलब है कि जो हमारे समाज का चाहे त्योहार हो, चाहे हमारी और गतिविधियां हो, उस सब पे रचनाएं मिल रही हैं आपको, और वो सब प्रतिबंधित हो रही है क्योंकि अंग्रेजों को डर है कि इससे उनकी सरकार गिर सकती है। अहिंसा पे अगर ना हो तो बात नहीं बनती, तो अहिंसा में लिखा है आगे। अब सत्याग्रह पर देखिए राग किलो में ये बिगुल बजा है सत्याग्रह का, रण थल में आज जाना हुआ, हंसते हंसते बड़ी वेदी पर गौरव से चढ़ जाना हुआ, जीवन है ज्योति अनुपम इसको आज बुझाना हुआ, रण चंडी को युद्ध भूमि में मरकर तुम्हें लिहाना हुआ। इसलिए सत्याग्रह के नाम से पत्रकार कर रही है, और सत्याग्रह समाचार देखिए हाथ से बना के लिखा जा रहा है। ये 3 वर्जन मैंने सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपको दिया कि आपको देखिए सत्याग्रह पर भी आपको इस तरीके की सामग्री मिलती है। क्रांति, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत क्रांतिकारी क्रांति बहुत बड़ा है, वो देखिए यहाँ पर हम क्रांति का विप्लव ये साम्यवादी मासिक पत्रिका की क्रांति। अब क्रांतिकारियों की जब बात होती है तो काकोरी भेंट की बात होती है, क्रांतिकारी षड्यंत्र की बात होती है, उसमें पूरी किताब संक्षिप्त विवरण है, पूरा का पूरा जो है किताब है। इसलिए सरफरोशी की तमन्ना जो सबने पढ़ा, और अजीम अकबराबादी के तो सबको पता चल गया, और इसमें से कंफ्यूज ना करें, राम प्रसाद इसमें से इसका बोले जाना नहीं है, अजीम अकबराबादी से पढ़ना के पास उनका लिखा हुआ है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, जो हम लोग अभी तक कंफ्यूजन जानते हैं। और बलिदान चाहिए, देखिए मर जाएंगे, देश हित पैदा हुए हैं, देश हित मर जाएंगे, मरते मरते देश को जिंदा मगर कर जाएंगे, हमको भरोसा, हमको पीछेगा फर्क चक्की कब
पत्थर खास बनकर आँख में उसके बशर कर जाएंगे। अभी मनोहरलाल ढींगरा उसमें क्रांतिकारी हैं जो हमारे गदर पार्टी के अंदर, उनके ऊपर उनकी पूरी ड्यूटी मिल रही है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो ये मैंने आपको दिखाया, आगे बढ़िए। अब जेल, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो जेल, कैदी, कारागार, इनपे जेल यात्रा की रचनाएं मिलती है। कह रहे भजबन भारत कारागार पूर्ण प्रवेश कृष्ण का हुआ जहाँ अवतार, आत्मश्रद्धा का मंत्र निकलेगा, देशभक्त का जीवन धन। ऐसे करके आपको जेल के ऊपर बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, क्योंकि जेल जो था वो तो मंदिर मानते थे लोग, आजादी का मंदिर है, तो जेल पे बहुत रचनाएं मिलती है, कैदी पे मिलती है। और गांधी जी की टोपी पे अगर बात की तो राष्ट्रीय आंदोलन पूरा नहीं होता। हालांकि गांधी जी ने एक ही बार टोपी लगाई, आप फोटो देखिए, गांधी जी की टोपी एक मिलती है, वो जिसमें मिली है वो मैंने आपको दिखा दिया है। 1918 में 1920 में पहली बार उन्होंने गांधी टोपी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्होंने गांधी टोपी कभी नहीं पहनी, लेकिन गांधी टोपी उन्होंने सबको तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना। तो गांधी टोपी वालों कहते हैं एक लहर चला दी भारत में, गांधी टोपी वालों ने स्वाधीन बनो ये सिखा दिया, एक गांधी टोपी वालों ने। तो गांधी की टोपी भी पोएट्री के लिए सब्जेक्ट बनती है और लोगों को समझ में आती है, और वो अंग्रेज उससे डर के उसको बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं, प्रोस्क्राइब करते हैं। नमक सत्याग्रह के बाद में ऐसा नहीं हो सकता, तो उसमें देखिए रसिया आ रहा है पूरा। अब रसिया लोग जो जाते हैं, लोग जीत के तो उसको खाली नमक बनाने, ऐसा गुजराती में नमक को मीठा बोलते हैं, इसीलिए था मीठा बना के भारत को मिठाई देंगे, भ्रम में पड़े हो साहब दिल से उसे हटा दो। ये मकबरा मंडल राष्ट्रीय मीडिया को छुपाता नहीं। नमक के ऊपर भी रचनाएं मिल रही है। बाइकआउट इस पे नहीं हो। अब देखिए इसमें एक चीज मैं पढ़ना चाहूंगा कि ये गजल छंदी, अब इसमें देखिए बाइकआउट क्या कहते हैं, देसी खद्दर की साड़ी मंगा दो मुझे, जरा चल करके लेक्चर सुना दो मुझे, रेशमी साड़ी विदेशी को ये मुझे भाती नहीं, पहनकर कोई विदेशी वस्त्र अब आती नहीं, एक चरखा चलाने बुला दो मुझे, देसी खद्दर की साड़ी दिला दो। तो अब देखिए ये गजल फॉर्म में लिखा जा रहा है, और बाइकआउट की बात हो रही है, और स्वदेशी की बात हो रही है। तो ये प्रतिबंधित साहित्य है, हमें बता रहे हैं, सरकारी सालों में तो कहीं मिल रहा है। चरखा के ऊपर बहुत मिलता है। देखिए चरखी की वगैरह आरती हो गई, ओम जय जय चरखे, ओम जय चरखे बाबा, ओम जय चरखे बाबा, भक्त विदेशी चक्र सुदर्शन मानचेस्टर बाबा, ओम जय जय भारत माता भाग्य विधाता तू स्वराज्य दाता, पराधीन नश गई तब जिसको कहता है ओम जय जय। उसी तरीके से हमारे पूर्वजों के हाथ का हथियार है चरखा, गांधी ने बनाया, दिलदार है चरखा। ऐसे में बहुत सारी चरखे की आपको रचना मिलेगी। मैं विषय बता रहा हूँ कि किन विषयों पे। अब गांधी के चरखे पे तो खादी पे भी है। खादी ऐसा नहीं कि खादी पर रचना नहीं, खादी पे रचना नहीं, खादी पे बनी है, खादी नहीं, खादी का डंका आलम ने बजवा दिया अब तो गांधी ने, और यूरोप के इंद्रासन को हिलवा दिया अब तो गांधी ने। देशभक्तों वस्त्रों को पहनो दो छोड़ विदेशी कपड़ों को, ये पाठ बड़ी विधि से हमको पढ़वा दिया अब तो गांधी ने। मधुर विदेशी कपड़ों का जो रचना मिलेगी, आप अगर पढ़ेंगे तो मैंने उनके नाम भी रखे कि किससे ली गई। चलो नेक्स्ट। अब देखिए अगर हम नारी शक्ति की बात करें तो अधूरी बात होती है कि महिलाओं की भागीदारी पर भी रचनाएं मिल रही हैं, देवियों से अपील हो रही है। ये देखिए ये हिंद की युवतियों मैदान में तुम आओ, दुर्गा की बेटियों हो, अब जब को याद दिखा दो, कालिका कुमारी तुम किससे डर रही हो, पर जांघिया चढ़ाओ साड़ी को कहा तो, किसकी बजाय तुमको तिरछी नजर से देखे, ये हाथ दो भाइयों को साहस से बढ़ा दो, ओंकार से तुम्हारी काया भी होंगे, ये गुप्त शक्ति अपनी संसार को। मतलब वीमेन पावर को भी आप देखिए 1930 के आसपास हो रहा है, इसी तरह लुट रहा है देश में वो। और अब जय हिंद हम करेंगे आज के पीपीटी का, तो जय हिंद में पेपर ही रचनाएं मिल रही। तो इसमें देखिए अभ्युदय में जय हिंद कहो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, ये हमारा नारा है, ये आ रहा है, ये जय हिंद पे रचनाएं मिलेंगे, ये आपको मिलती है। तो ये तो मैंने कंटेंट की बात करी, भाई कुछ और थोड़ी सी बातें करते हैं कि इन पे हो क्या सकता है। मतलब हम कंक्लूडिंग सेशन आ रहे हैं, तो साइड बात करेंगे कि ये जो लिटरेचर है ये खाली कोई कहे कि हिंदी के लोगों के लिए है, ये पहले कोई इसके सामने आपने देख लिया कि ये एकेडमिक सब्जेक्ट है और इसमें कई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि लोकगीतों पे बहुत काम हो सकता है, इसमें
इसमें दादरा है, कजरी है, मल्हार है, तराना है, लोरी है, रसिया है, आला है, नौटंकी है, ये सब पर मटेरियल अवेलेबल। Somebody has to come and do something, collect and analyze and present in a decent manner. That is my first मतलब सजेशन रहा। दूसरा ये कि नेशनलिस्ट की मैंने कुछ दिखाया आपको, खाली झंडा तिरंगा चरखा बंदे मातरम देश में दिया है। मेरे ख्याल से हम बुक फेयर जाते हैं, ऐसी कोई किताब हमें देखने को नहीं मिलती जिसमें कि थीमेटिकली किसी ने करा हो। आज़ादी के गीत, फलाने गीत या उसके ऐसे लोग के नाम तो मिल जाएंगे, उसमें आपको थीमेटिकली मिलते हैं, वो काम हो सकता है। ह्यूमन पार्टिसिपेशन और नेशनल हमारे जो हीरोज हैं, जैसे गांधीवादी हैं, क्रांतिकारी हों गए, क्रांतिकारियों के खाली गीत घंटे करने वो भी काम हो सकता है। और दक्षिण भारतीय भाषाओं में तो काम हो ही नहीं, जबकि मलयालम और तमिल में 54 पोइट्री और हिंदी में नाटक, उपन्यास और कहानी पर काम करने की जरूरत है। अंग्रेजी में जितना लिटरेचर है उसको हिंदी में लाने की जरूरत है। अंग्रेजी में मैंने बताया था जो कोर्स में है उसको हिंदी में लाने की जरूरत है। तो अब हम समाप्त करते हुए बात ये कहेंगे कि ये जो हमने आज सामग्री के बारे में जाना, ये कोई साधारण सामग्री नहीं थी, बल्कि कंटेम्परेरी जो सोसाइटी का जो है मिरर है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली रिसोर्सेज हैं, ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं, और इन पर नए सब्जेक्ट्स पे काम हो सकता है। थर्ड चीज मैं जो कह रहा चाहता हूँ कि हमारी आर्काइवल हेरिटेज और आर्काइवल हेरिटेज को के अवेयरनेस की जरूरत है, तो वो होना चाहिए। और अभी भी मैं मानता हूँ कि कुछ हमने लिस्ट करे हैं, लेकिन हो सकता है आपके गांव में, आपके शहर कोई लाइब्रेरी में आपकी पुरानी किसी पुस्तकालय में तक चीजें पड़ी हैं, तो उनका एक अभी जो कहते हैं प्रॉपर सर्वे भी नहीं है। हमने क्योंकि इस पे 1976 में काम करना शुरू किया, तो अभी 50 साल इतिहास में कुछ भी नहीं होता है, तो 50 साल 100 साल भी मान लीजिए अगर, तो 100 साल में अभी कुछ नहीं कर रहा है, तो 100 साल के अंदर हम उसको हम करते हैं। और मेरा तो पर्सनल सजेशन ये है कि अगर ये सारा मटेरियल कोई इंस्टीट्यूशन, कोई इंडिविजुअल कोई करे, और आज की तारीख में जैसे हम कहते हैं वेब पोर्टल बनाया जाए, इसमें क्या प्रोस्पेक्ट लिटरेचर जैसे उन्होंने बनाया है, मैंने आपको बताया था, तो एक, लेकिन उसमें वो कंप्लीट नहीं है, स्टेट में क्या है, कहाँ क्या है, मतलब वो हाइपरलिंकिंग करके कैसे भी करा जाए ताकि कहीं से कोई आदमी उसको एक्सेस तो कर सके। एक्सेस को लिए हमें करना पड़ेगा। और ये मैंने लास्ट में आपका भगत सिंह का कि लाहौर की सूली पर उनके पूरी किताब है, ये 1931 में हुई, सरदार भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, तो ये मैंने करा। इसके साथ ही मेरी बात तो पूरी हुई। आप लोगों के दिमाग में कोई बात हो तो वो मैं इधर हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा, ठीक है। Thank you so much, sir. This was indeed an intellectually stimulating session, and I believe our listeners have some questions in their mind. I now invite anyone who has questions to kindly raise their hand, and sir will be more than pleased to respond them. Very wonderful presentation and lot of new things. बहुत सारी चीजें जो सिर्फ हमने सुनी है, राइट, लेकिन जब आप उसे देखते हैं तो ये अलग तरीके का इंटरेस्ट आपने जागृत करता है। तो जब आपने बताया किन किन एरियाज में काम हो सकता है, तो इमीडिएटली there was a thought कि अच्छा, this is very interesting। तो ये जब इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए या एक्सेस करने के लिए क्या नेशनल आर्काइव में नहीं, मैंने आपको लिंक दिया है कि अमृत महोत्सव की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट है अमृत महोत्सव वाली, उसमें जाइए, वहाँ पर स्वतंत्र स्वर करके ओके एक लिंक है, उसको जाकर आप देखें, क्लिक करें, तो आपको, मतलब मैं नहीं करूँ, मैंने तो और सोर्सेज भी बताया, लेकिन नेशनल आर्काइव में क्या है वो तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। दैट यू गेट थैंक यू सो मच। हाँ, बोलो बेटा। सर, इसका एक्चुअली टाइम पीरियड मतलब क्या रहता है? टाइम पीरियड देखो, बेसिकली स्टैंडर्ड तो शुरू से भी मैंने बताया कि गलत से भी मान लो उसको, लेकिन अगर देखा जाए 1907 से लेकर और 46-47 तक रहेगा, तो मिलते हैं, क्योंकि सरकारी मामला हो। लेकिन एक चीज जो अगर हम इधर से बात कर रहे थे, बात यह है कि 47 के बाद बंधन बंद हुआ, बैन नहीं बंद हुआ, क्योंकि सरकारें तो आएंगी, सरकारें अपना काम करेंगी, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगी। ये जिसे कहते हैं कंटिन्यूइंग प्रोसेस, सतत प्रक्रिया है। बैन होंगे
आज भी बहुत सारी किताबें बैन हो रही हैं, आज से 10 साल पहले बैन हुई हैं। और उन बैन किताबों को, जैसे आपको याद हो एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सैटेनिक वर्सेस हिंदी बैन, और बहुत सारी किताबें आपको और नोटेड लोग भी हो जाएंगी। बैनिंग का प्रोसीजर चलेगा क्योंकि एक्सप्रेस हम कर सकते हैं, अपनी आज़ादी है, वी हैव एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। गवर्नमेंट का काम है, वो चाहती है कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे कि झगड़ा हो या कुछ गलबा हो या कुछ इस टाइप का हो। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर बैंड लिटरेचर को एटलीस्ट वो कंटेम्प्रेरी पीरियड का पीरियड तो है, ये तो हमारे को फ्रीडम स्ट्रगल से मिला तो हमें इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन 50 साल बाद उसका सही इवोल्यूशन हो सकता है कि वो सही व्यक्ति सही था, उसका थॉट प्रोसेस सही था या गवर्नमेंट सही थी। जैसे अब हम इसको 1936 में हमने प्रेस्क्राइब लिटरेचर को पहले उठाया, तब समझ में आया कि वो 1907 में 1913 में या 30 में बनने की 50 साल का पीरियड होता है। वो जिसे कहते हैं कि कोई भी फ्रूट राइट होता है ना तभी खाने का मजा होता है। तो आगे भी हम लोग ये कहते हैं कि 25 साल पुराना है तो हम करके 30 साल पुराना ही दिखाते हैं, तो 50 ईयर्स के बाद ही पता चलेगा कि ये लिटरेचर, ये जो लिखा हुआ आज का हुआ है, वो सोसाइटी का ट्रू रिफ्लेक्शन था एडमिनिस्ट्रेशन की रात की उसको थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा किया या गलत किया। ये डिसीजन अभी तुरंत नहीं, बैनिंग तो चलेगी क्योंकि शासित और शोषित, शासन करने वाले लोग और जो ये दोनों के बीच के टकराव का प्रतिशोध का भी इसको पाएगा, तो ये बात है। तो पीरियड 97 से मिलना शुरू हो जाता है काफी मात्रा में, हर लेवल पे मिलना शुरू होता है और 47 तक तो आता ही आता है। उसके बाद भी चलता रहेगा, आज भी बैन हो रही है, बैन होती रहेंगी जब तक हमारी सिविल सोसाइटी है तब तक बैन होगा। अब तो एनीथिंग है अब सर तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उस टाइम पे नहीं, मैंने उसका पूरा प्रोसेस बताया ना, उन्होंने तो कैसे कैसे एक्ट लाया, इसके हम तो कैसे कैसे एक्ट आया, सबसे बताया, तो वो हुआ तो उस प्रोसेस तो चलेगी, प्रोसेस चलेगी। इसलिए तो पीरियड में जब अगर उनके पास आई तब उन्होंने उसी हिसाब से जो लिखाना शुरू किया। जब पब्लिक एक्चुअली बंगाल का जो कमी था वाला, उस समय न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ, तो न्यूज़पेपर रिफ्लेक्शन शुरू हुए और वो गाँव तब लोगों को पता चला। वरना तो आज का जमाना इधर बैठे आप लोग में कर दिया वो काम, तो जब तक इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं तब तक क्या बोला उसके बाद पहुंचने में टाइम न्यूज़पेपर ही तो उन्होंने बात किया जो नेटिव न्यूज़पेपर चलते थे पॉपुलर एक्टर भी बनाया, तो जो छोटे छोटे निकलते थे उनकी वगैरह रिपोर्ट बनानी शुरू क्या ये बंगाल में क्या छप रहा है, यहाँ पे क्या छप रहा है, या नॉर्थ वेस्ट में क्या छप रहा है, एंडरपुर में क्या छप रहा है, पंजाब में क्या कौन सी न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो रहा है, तो उन्होंने वगैरह नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट बनाई और उससे ही देखो तो फिर अपने एक्ट बनाने लगा कि उन्होंने यहाँ पे छापा खाना बंद कर देंगे आप लोग 500 में उसमें लगाना पड़ेगा। We would like to welcome Dr. Mrityunjay Kumar for some closing remarks. Thanks a lot to Mr. Srivastava for path-breaking presentation and focusing on the sources least known to scholars and to students. I'll briefly talk about the notion of banning the book. Why a book or any study material is banned. And this has been going on, in fact, on the massive scale during the colonial period all over the world. And the banning of book also took place during the fascist regime. And the most striking example that comes to my mind is Antonio Gramsci prison notebook, banned during the fascist regime in Italy. So all fascist and the colonial rules banned many books opposed to the basic element of imperialism and the basic element of fascism. Even after independence,
In different parts of the world, banning continues, as pointed out by Mr. Srivastav. In the context of India, I will refer to banning of the book written by my teacher, Professor R.S. Sharma, and my another teacher, Professor D.N. Jha. Professor D.N. Jha wrote Ancient India for class 11th student, and this was banned in 1977. And the book that you today read, India's Ancient Past, is virtually the expanded version of that book. Professor D.N. Jha book, Myth of Holy Cow, was banned. In fact, no Indian publisher was willing to publish his book. First book was published from London, not from India. Today, of course, you will get this book, but this book was originally also banned. In the context of India, I will refer to path-breaking, or rather historian who brought about paradigm shift in historical writing, is Professor Romila Thapar. Romila Thapar book was written for class 7th student NCERT book. That book was also banned. So banning is a continuous process and it will go on. So the basic question is, banning means suppressing dissenting voice, suppressing the voice that confronts establishment. So every state is extremely careful about the publication of the books. So banning has to be seen in that context. Thanks a lot, sir. I request Prashant sir and Meeta ma'am to extend our respects to Mr. Rajmani Srivastav by presenting him with a token of gratitude. Last but not the least, to conclude the proceedings, I would call Sanskar to deliver the vote of thanks. Hello everyone, as Rishi introduced me, I'm Sanskar. I'm one of the many volunteers who contributed to bring this program to you, and I'm here on the behalf of the Center for Shaheed Bhagat Singh Studies and Research. Today's lecture I hope was interesting. It was very interesting for me, and we got to know a lot about proscribed literature that we did not know about. We did not know about and probably hadn't even heard of. And we got to know about various aspects that are related to proscribed literature and banned literature. On the behalf of the center and the Shaheed Bhagat Singh College, first of all, I would like to thank Principal Sir and IQAC Coordinator Raman Sir, whose blessings are always with us to organize such events. And most of all, I would like to thank Rajmani Srivastav Sir for giving us your valuable time, and your lecture was extremely interesting and acquainted us students to an entirely new subject. We are also grateful towards Meeta ma'am, and rather we are most grateful towards Meeta ma'am because since the last few years and since she has been in this college, as far as I know, ma'am has contributed to intellectual enrichment of the student body, of the faculty, of everyone present in the college through her active volunteering action in organizing such events.
I would like to invite Prashant sir, Prerna ma'am, and other faculty members present here to present ma'am with a token of gratitude from the center for her long association with the Center for Shaheed Bhagat Singh Studies since its inception, and for her stewardship in the last 10 years, almost 10 years. We're also thankful towards a wonderful audience who sat patiently through the talk and listened attentively. And also many thanks to all the volunteers, and we have a lot of them today. All the volunteers whose valuable time and effort made today's event possible. Last but not the least, we are grateful towards the college's support staff, including the technical team, the cleaning staff, the college administration, and all those who lent a hand for a smooth organization of today's event. Thank you all. We hope to see you coming for our events in the future as well. Sir. थोड़ी सी बात, चूँकि मैम का लास्ट प्रोग्राम होगा तो एक बड़ी लिगेसी छोड़ के जा रही हूँ। और मैम ने जहाँ से शुरू किया था इस सेंटर को, जैसा कि संस्कार ने कहा, एक बहुत ऊर्जा के साथ मैडम का पैसन रहा है इस सेंटर को और इस सेंटर से जुड़े हुए विषयों को डील करने में। मैम का विषय भी रहा शुरू से, मैम का एमफिल में सब्जेक्ट और आपका पूरा रिसर्च मॉडर्न इंडिया, उसमें वीमेन रिवोल्यूशनरीज, उनका कंट्रीब्यूशन। तो एक बड़ी लिगेसी है मैम की, एक बड़ा काम है जो हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। सर ने आज उसमें और विभिन्न आयाम जोड़ दिए कि अभी ये कितना बड़ा काम करना बाकी है। और जिस महान व्यक्तित्व के नाम पर इस कॉलेज का नाम, इस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम लोग एज ए टीचर, स्टूडेंट्स, जितने भी इस नॉलेज प्रोडक्शन में लोग लगे हुए, हमारी सबकी एक महती भूमिका होगी मैम। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये सेंटर आपके प्रेरणा से, आपके आशीर्वाद से एक नई ऊंचाई को छुएगा। दूसरा मैम, ये भावुक क्षण भी है। भावुक क्षण इस संदर्भ में है कि जो आत्मीयता और जो मार्गदर्शन, जो प्रेम आपसे मिलता रहा, और ये सिर्फ हमको नहीं मिलता रहा। मुझे नहीं पता कि आपके इस भावनात्मक पक्ष ने कितने स्टूडेंट्स को सींचा होगा, संवारा होगा, बड़ा किया होगा, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं। कई बार मैम को हर तरीके से मदद करते हुए, उनको कहना ठीक नहीं लगेगा कि मैम ने किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर दी, किसी को बुक दे दिया, किसी को किस तरह कर दिया, वो ठीक लगता नहीं है कहना। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आपने मैम बहुत लोगों के हृदयों को छुआ। आपने बहुत से लोगों के जीवन को एक दिशा देने की कोशिश की है। मैम बंगाल से आती हैं, तो जब भी मैम को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये गंगा माँ चूंकि बंगाल में जाकर के अपना विस्तार लेती है, उतना ही सरल, उतना ही सहज, उतना ही बहुत से लोगों को जीवन प्राण देने वाली, उतनी ही आत्मीयता वाली मैम। तो एक अभिसिंचित करती है एक बड़े जनसमूह को, बड़े लोगों को उतनी ही पवित्रता के साथ। मैम का कभी भी क्लास मिस नहीं हुआ। हम लोगों को बहुत से काम रहते हैं, उसमें देखना कई बार मैनेज करना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि चलो देख लेते हैं, लेकिन मैम आप इस शहीद भगत सिंह की सेंटर की आप फाउंडर मेंबर रही हैं। ये सेंटर आगे बढ़ेगा, आपका इसको आशीर्वाद मिलता रहेगा और ज़्यादा और चीज़ें होती रहेंगी। धन्यवाद। मैं आप लोगों के सामने, चूँकि आपने भावना की बात करी, भावुक हो गया, मैं भी हुआ। मैंने मैडम को एज ए स्कॉलर देखा है, और मीता जी को इनका जुनून जो पढ़ाई में देखा है, उससे ज़्यादा इनका स्कॉलर, एज ए स्कॉलर देखा है। ये कितने घंटों
आर्गेज में बैठ के काम करती थी, इसका मैं साक्षी हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें मैं यहाँ पर आ सका। मेरी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन के दूसरे पानी खेलेंगी। अभी तक उन्होंने एकेडमिक जगत में जो काम किया है उसके अलावा वो अब अच्छी किताबें आप लोगों के लिए लिख के देंगी। मेरी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरे लिए वाकई में सौभाग्य है कि आज मैं इस मौके पे यहाँ आया। मुझे नहीं मालूम था कि आज इनका आखिरी दिन है यहाँ पर। एनीवे, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। गीता जी, आप आगे काम करिए।